Hello students. In this video you will get some important MCQs of chapter motion class 9. This is part 1, so let us start. Here is the first question. To describe the position of an object, we need to specify a reference point called the. There are four options. First, point object, axis, second one, third one, graph, and fourth one, origin. So its answer will be option number D, that origin, this one. Okay. Now next one, that to describe distance we need to specify only there are four options: numerical value and the direction of motion, second number numerical value and not the direction of motion, third number direction of motion, fourth number the shortest distance measured from the initial to the final position of an object. Its answer will be numerical value एंड नॉट द डायरेक्शन ऑफ मोशन, बिकॉज डिस्टेंस के लिए हम लोग को सिर्फ चाहिए न्यूमेरल वैल्यू. ठीक है. और क्वेश्चन नंबर 3, द टू डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी विच आर यूज टू डिस्क्राइब द ओवरऑल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एंड टू लोकेट इट्स फाइनल पोजिशन विथ रेफरेंस टू इट्स फाइनल इनिशियल पोजिशन टू अ गिवन टाइम आर. यहाँ पे भी चार ऑप्शंस हैं, that distance and displacement, magnitude of displacement and distance, displacement and velocity, and D number that speed and velocity. So इसका आंसर क्या होगा? that distance and displacement, that option number that is A. ठीक है. Next one, that question number 4, a vector quantity has, simply that here that vector quantity definitely having both magnitude and direction, so its answer will be C number, that both magnitude and direction. Question number 5, the magnitude and the displacement of an object is always, क्या होता है displacement, that magnitude of displacement of an object is always, so here it will be always less or equal to the distance travel. Okay. Now 6th number question देखते हैं हम लोग. Here that in 6th number, and what is given, that odometer of automobiles record. तो odometer क्या measure करता है? Everybody knows that is distance travel, so its option will be C. 7th number, the retardation of a body is expressed in. तो retardation that is negative acceleration, so its unit will be meter per second square, not minus meter per second square, means its answer will be D, that meter per second square. ठीक है. 8th number, the speedometer of a car measures. स्पीडोमीटर क्या मेजर करता है? डेफिनेटली स्पीड. तो यहाँ पे देखेंगे क्या है? एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एक्सेलरेशन, नन ऑफ दीज, सो इट्स ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 9, that see that here that on a velocity time graph, horizontal a straight line corresponds to motion at, so what it will be? यहाँ क्या लिखा हुआ है? that velocity time graph है, horizontal a straight line. horizontal मतलब अब पैरेलल हो रहा है, तो यहाँ पे that will be ऑप्शन नंबर A, that is having constant velocity. ठीक है, ये आप इस ढंग से समझ सकते हैं. क्वेश्चन नंबर 10, that if the displacement time graph of a particle is parallel to the time axis, the velocity of the particle is, क्या कह रहे हैं यहाँ पे कि that displacement time graph में that a particle is parallel to the time axis, अगर time axis के parallel है तो क्या होगा displacement time graph में? तो definitely its answer will be 0. velocity क्या हो जाएगा? 0. क्यों होगा? जस्ट आप यहाँ देख सकते हैं, समझ सकते हो that सपोज दिस इज़ द, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, यहाँ टाइम हो गया, एंड इफ़ दिस इज़ पैरेलल, इसका मतलब जिस जगह पे है उसे एज द टाइम पासेस इस डिस्टेंस इज सेम, मीन्स दैट डिस्प्लेसमेंट इज सेम, सो दैट ऑप्शन नंबर दैट विल बी आवर सी नंबर, दैट ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट, मतलब 0 हो जाएगा. नाउ 11th नंबर क्वेश्चन, हियर द ग्राफ इज गिवन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज दैट द बॉडी इज एट रेस्ट. तो यहाँ पे ध्यान से इसको देखना है कि डिस्टेंस, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, फोर्थ नंबर, पहला जो है डिस्टेंस टाइम ग्राफ है, ये पैरेलल है लाइन. ठीक है, तो यहाँ पे डेफिनेटली इट्स आंसर विल बी दैट ए नंबर,
डिस्टेंस टाइम ग्राफ में पैरेलल बता देंगे, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12 में देखते हैं क्या है। द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज शॉन इन फिगर, ठीक है। तो एक्सेलरेशन पूछ रहा है कि एक्सेलरेशन क्या होगा। तो डेफिनेटली एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से आप समझेंगे कि दैट देखो यहाँ पे एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, दैट इज द स्लोप। स्लोप मतलब ये पार्ट और ये पार्ट, मतलब आप इसको बताओगे ये पार्ट कहाँ से आ जाएगा, दैट एक्सेलरेशन दैट विल बी इक्वल टू सी दैट यहाँ से हो जाएगा दैट 10 माइनस यहाँ पे 5 कर देंगे, और नीचे में क्या हो जाएगा हमारा जो टाइम है दैट 0 से लेकर 2 तक दैट इज़ 2, तो ये आ जाएगा 5/2 दैट इज इक्वल टू 2.5, ठीक है। तो 2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दैट इज ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। आफ्टर दैट सी द क्वेश्चन नंबर 13, द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स। तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या देता है, ऑलवेज दैट गिव्स अस व्हाट, दैट इज एक्सेलरेशन, ठीक है। सो इट्स ऑप्शन इज सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या कह रहा है कि द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ मूविंग पार्टिकल इज शॉन इन द फिगर। फिगर में दिया हुआ है, कह रहा है कि दैट द एक्सेलरेशन इज मैक्सिमम फॉर द सेगमेंट। तो सबसे ज़्यादा हम लोग देख रहे हैं कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन हो रहा है। देखो यहाँ पे स्लोप जो है और यहाँ पे स्लोप, तो डेफिनेटली इस जगह पे स्लोप ज़्यादा हो रहा है। इसका मतलब ये सेगमेंट जो है दैट इज BC सेगमेंट, यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे ज़्यादा एक्सेलरेशन है। सो दैट ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 15 में आते हैं। देखिए द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ बॉडी इज शॉन इन फिगर, द डिस्टेंस ट्रैवल्ड इज। तो यहाँ पे हम लोगों को डिस्टेंस ट्रैवल्ड फाइंड करना है। तो डिस्टेंस ट्रैवल कैसे फाइंड करते हैं, आपको पता है कि दैट डिस्टेंस ट्रैवल क्या हो जाता है, दैट एस इक्वल टू यहाँ पे एरिया बिटवीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ, मतलब आपको एरिया बताना है किसका, O A B और E का। तो यहाँ पे जब आप इसको फाइंड करोगे तो क्या आ जाएगा, दैट इज 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो सम ऑफ पैरेलल साइड में आप देखिए यहाँ पे हो जाएगा 4 to 8 में कितना आ जाएगा, 4 to 12 में दैट 8 आ जाएगा यहाँ पे, और प्लस यहाँ पे 20, और इसको इंटू कर देना है आपको किससे, हाइट यहाँ पे 8, ठीक है। आप इसको 2 से कैंसिल कर दीजिए 4, तो यहाँ हो जाएगा 28 इंटू 4। आप बता सकते हो कि इसमें क्या आंसर आ जाएगा, दैट आराम से आप बता सकते हैं कि व्हाट विल बी आंसर। देखो 8 4 जा 32, 3 लेफ्ट, 4 2 जा 8 प्लस 3 11, 112। अब देखते हैं 112 कहाँ पे है भाई, तो दैट ऑप्शन नंबर ए। सो इसका आंसर क्या हो जाएगा, दैट ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये हो गया। आफ्टर दैट सी द क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बता रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि द न्यूमेरल रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज। तो हमेशा याद रखेंगे कि दैट डिस्प्लेसमेंट जो होता है डिस्टेंस से या तो इक्वल होगा या लेस होगा, इट विल नेवर बी मोर देन। सो इट्स ऑप्शन विल बी डी नंबर, दैट इक्वल टू और लेस देन 1, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 17, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज proportional टू द स्क्वायर ऑफ टाइम देन द ऑब्जेक्ट मूव्स विथ। अब देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट जो है दैट क्या है, proportional टू द स्क्वायर ऑफ टाइम, मतलब टाइम जो है उसके स्क्वायर, मतलब कि कहने का मतलब क्या हुआ कि दैट डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ टाइम। मतलब ये सिंपली डिस्प्लेसमेंट प्रोपोर्शनल साइन देके हम लोग टी स्क्वायर बता सकते हैं। तो इसका मतलब क्या होगा, व्हेन टाइम जैसे जैसे बढ़ते जाएगा, इसका मतलब ये कह सकते हो स्ट्रेट लाइन होगा। तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन इसका क्या बताएंगे, दैट यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक है। 18th नंबर क्वेश्चन देखिए, दैट फ्रॉम द गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ इट कैन बी इन्फर्ड दैट एन ऑब्जेक्ट। अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है, तो क्या आप बता सकते हो कि दैट व्हाट विल बी द आंसर। मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ऑब्जेक्ट क्या होता है, दैट हैविंग द यूनिफॉर्म मोशन। सिंपली आप बता सकते हैं दैट फ्रॉम गिवन टाइम ग्राफ, ये जो हम लोग का ग्राफ दिया हुआ है पैरेलल है, तो डेफिनेटली इट हैविंग यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 में आ जाइए जरा। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स अ फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ द यूनिट। अब देखो यहाँ पे एरिया बिटवीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बताता है, दैट इज सिंपली आप बता सकते हो कि दैट एरिया बिटवीन वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। क्या होता है दैट या क्या होता है दैट एरिया क्या होता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, नॉट एक्सेलरेशन, दैट इज डिस्टेंस ट्रेवल। तो डिस्टेंस ट्रेवल उसका यूनिट क्या होता है, मीटर। सो इट्स ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मीटर, ठीक है। बी करेक्ट आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं जल्दी से। 4 cars A B C D
are moving with a level road on a level road, their distance versus time graph are shown। यहाँ पे देखो B, A, D, C सब बताया हुआ है। तो स्लोप देखो सबसे ज़्यादा किसका है, स्लोप सबसे ज़्यादा C का है और सबसे कम स्लोप किसका है, दैट इज़ B का। तो यहाँ पे कह रहा है कि विच वन इज़ कह सकते हो फास्टेस्ट और विच वन इज़ द स्लोएस्ट, जो ऑप्शंस में दिया हुआ है। जैसे ए फास्टेस्ट नहीं हुआ क्योंकि वो बीच में है, ठीक है, डी से। तो इस तरह से यहाँ पे देखो दैट सी इज़ स्लोएस्ट, बी इज स्लोएस्ट, डी इज़ फास्टर दैन सी। तो यहाँ पे हम लोग अगर इसको ऑब्जर्व करते हो आप, तो सिंपली आप कह सकते हो यहाँ पे स्लोप सबसे कम किसका है, बी का। तो आप कह सकते हो बी इज स्लोएस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 में आ जाइए। दैट अ पार्टिकल मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, द डिस्प्लेसमेंट आफ्टर हाफ अ सर्कल। एक सर्कल के बाद जस्ट वो अपोजिट पोजिशन पे होगा, तो व्हाट विल बी इट्स व्हाट, क्या पूछा गया, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दैट इज इक्वल टू डायमीटर। सो इट्स ऑप्शन विल बी बी नंबर, दैट इज पाई आर। 21 का क्या हो जाएगा, दैट नॉट पाई आर, दैट इज 2r, ओके, दैट इज इक्वल टू डायमीटर, ठीक है। 22 नंबर देखिए। सपोज अ बॉय इज एंजॉइंग अ राइड ऑन अ मैरी गो राउंड विच इज मूविंग विद अ कॉन्स्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इट इम्प्लाइज दैट द बॉय इज, तो यहाँ पे ये मैरी गो राउंड मतलब एक राउंड सर्कुलर पे मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि दैट यहाँ पे डेफिनेटली ये एक्सेलरेटेड मोशन होना चाहिए। तो दैट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इन एक्सेलरेटेड मोशन, ठीक है। 23rd नंबर देखते हैं। व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम इट इज व्हाट ट्रैवलिंग विथ। अब यहाँ पे दैट 4 ऑप्शंस यहाँ भी है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, कांस्टेंट स्पीड, वेरिएबल स्पीड। तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे कि दैट डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ बॉडी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैविंग कांस्टेंट स्पीड, ओके चिल्ड्रेन।